Good morning, dear students. Hope you all are fine and well. Yesterday, we completed the chapter 3, that was graphics in basic 256. So today, we'll discuss the exercises and question and answers of the chapter. So first exercise is tick the correct answers. You have to select the correct answers from the given option. A part is the area which displays pictures, shapes and graphics that you create is known as text output area, program area or graphic output area. So we all know that graphic output area is the area which displays pictures, shapes and graphics that you create. So answer is graphic output area, that is third part. Just see in the image. B part, in basic 256 you can apply color in drawings and text by डैश वेज. बेसिक 256 में हम किन तरीके से कलर अप्लाई कर सकते हैं अपनी ड्राइंग में. सो वी कैन अप्लाई कलर बाय टू वेज. हम दो तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, बाय नेम ऑफ द कलर एंड बाय RGB वैल्यू, रेड ग्रीन ब्लू वैल्यू ऑफ द कलर. सो आंसर इज टू वेज. थर्ड ऑप्शन टू वेज. नाउ सी पार्ट इज डैश कमांड इज यूज टू क्लियर द ग्राफिक आउटपुट स्क्रीन. तो ग्राफिक आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करने के लिए कौन सा कमांड यूज होता है? CLG कमांड. हमारे पास ऑप्शन है CLS, CLG एंड END एंड, बट ऑप्शन इज सेकेंड ऑप्शन CLG. नाउ कमिंग टू डी पार्ट, डैश कमांड इज यूज टू रिसाइज द ग्राफिक आउटपुट एरिया. किस कमांड से हम ग्राफिक आउटपुट एरिया को रिसाइज, उसका साइज चेंज कर सकते हैं? तो ये लास्ट टॉपिक था हमारे चैप्टर का, रिसाइजिंग ग्राफिक आउटपुट एरिया. इसका आंसर है ग्राफ साइज कमांड. Third option, graph size command. We have three options: polygon command, circle command and graph size command. Correct answer is graph size command. Now the last part of tick the correct answer is to see the output, click on the dash button on the toolbar. Output देखने के लिए हम कौन से बटन पे क्लिक करते हैं? हर बार हमने डिस्कस किया. Answer is run button. We are given with three options: run, debug or undo. But answer is first part, run button. So that's all with tick the correct answer. Now we will discuss true and false. So first true and false is, in basic 256 you can apply colors either by name or by RGB value. This is true. Basic 256 में हम कलर दो तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, नेम से और RGB वैल्यू से. तो हमारा ये पहला आंसर ट्रू है. सेकेंड बी पार्ट, टू प्रिंट द स्ट्रिंग नो नीड टू एनक्लोज इट इन डबल कोट्स. किसी स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए हमें उसे डबल कोट्स में मीन्स डबल इन्वर्टेड कॉमास में एनक्लोज करने की ज़रूरत नहीं है. ऐसा क्वेश्चन में गिवन है, बट दिस आंसर इज फॉल्स. टू प्रिंट द स्ट्रिंग वी नीड टू एनक्लोज इट इन डबल कोट्स. हमें उसे डबल कोट्स में एनक्लोज करने की ज़रूरत है. सो दिस आंसर इज फॉल्स. नाउ सी पार्ट, एंड कमांड इज यूज टू टर्मिनेट द प्रोग्राम. एंड कमांड का यूज प्रोग्राम को स्टॉप करने के लिए, टर्मिनेट करने के लिए होता है. दिस आंसर इज ट्रू. डी पार्ट, text output area will display pictures, shapes and graphics that you create. text output area में हमें pictures, shapes और graphics दिखेंगे जो हमने create किए. This answer is false because pictures, shapes and graphics are displayed in graphic output area. हमें पता है कि graphic output area में हमें pictures, shapes और graphics का output मिलता है. So answer is false. Answer is graphic output area. Last part, RGB stands for red, green and blue which are primary colors. This is true. RGB का मतलब है red, green, blue और वो primary colors होते हैं हमारे. So that's all with true and false. Now we'll discuss fill in the blanks. So first fill in the blanks is, graphic output area is made of many tiny particles called, graphic output area tiny parts से बना होता है जिसे हम बोलते हैं pixels. So answer is PIXELS, pixels. B part, in RGB value of red, green and blue defines dash of the color between 0 and 255. ग्राफिक आउटपुट एरिया में हम कलर असाइन करते हैं तो रेड, ग्रीन, ब्लू जो RGB वैल्यू होती है वो कलर की इंटेंसिटी को डिफाइन करता है. सो आंसर इज इंटेंसिटी. थर्ड इज, यू कैन मेक अ ट्राइंगल विथ कलरफुल लाइन यूजिंग डैश कमांड. तो हम ट्राइंगल कैसे बना सकते हैं? जब मैंने आपको लाइन कमांड पढ़ाया था तो पढ़ाया था कि लाइन कमांड का यूज़ करके हम ट्राइंगल भी बना सकते हैं, थ्री डिफरेंट लाइंस का यूज़ करके और थ्री डिफरेंट कलर की लाइन का यूज़ करके. सो द आंसर इज लाइन कमांड. लास्ट इज, द डिफॉल्ट साइज ऑफ ग्राफिक आउटपुट एरिया इज, ग्राफिक आउटपुट एरिया का डिफॉल्ट साइज क्या है? तो जब मैंने पढ़ाया था बताया था 300x एंड 300y पिक्सल्स. Answer is 300x means 300 coordinates of rows and 300 coordinates of column. So answer is 300x and 300y pixels. Now next exercise is write the RGB value of the following colors.
हमें कलर्ड नेम गिवन है, हमने उनकी RGB वैल्यू लिखनी है। तो फर्स्ट इज रेड, इन रेड द RGB वैल्यू इज 255,0,0 मीन्स रेड की इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा, दैट इज 255, और हमारी बाकी दोनों ग्रीन और ब्लू की इंटेंसिटी 0। बी इज ब्लू, तो RGB वैल्यू ऑफ ब्लू इज 0,0,255। रेड और ग्रीन की इंटेंसिटी 0,0 और ब्लू की सबसे ज़्यादा 255, तो RGB वैल्यू ऑफ ब्लू इज 0,0,255। थर्ड वन इज वाइट, RGB वैल्यू ऑफ वाइट इज 255,255,255, तीनों कलर्स की इंटेंसिटी 255। फोर्थ वन इज ग्रीन, RGB वैल्यू ऑफ ग्रीन कलर इज 0,255,0, रेड और ब्लू की 0 और ग्रीन की इंटेंसिटी 255। फिफ्थ वन इज येलो, फॉर येलो द RGB वैल्यू इज 255,255,0 मीन्स रेड और ग्रीन की इंटेंसिटी 255 और ब्लू की 0 मीन्स येलो इज द मिक्सचर ऑफ रेड एंड green. Last one is cyan. Cyan is the mixture of blue and green. So for cyan, the intensity of red will be 0 and RGB value will be 0,255,255. Red की intensity 0, green और blue की maximum that is 255. Now we have to complete the following basic 256 program to get the given output. हमारे पास एक आउटपुट गिवन है जिसमें रेक्टेंगल हमारा येलो कलर का है, उसके अंदर 2 सर्कल्स हैं ब्लैक कलर के और एक अंदर छोटा सा रेक्टेंगल है रेड कलर का, उसे कंप्लीट करना है। सबसे पहले क्लियर कमांड गिवन है CLG, उसके बाद कलर के आगे डैश लिखा है, तो हमें दिख रहा है हमारा रेक्टेंगल येलो कलर का है, सो वील राइट देयर येलो। नेक्स्ट लाइन रेक्ट कमांड आया 50, डैश, 200, 200। तो हमें y के कोऑर्डिनेट्स नहीं पता हैं, x के पता हैं। स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट जो हमारे रेक्टेंगल का है y और x के सेम है, सो जो x का रहेगा वही y का रहेगा, तो 50, वहाँ पे आंसर आएगा 50। नेक्स्ट कलर ब्लैक गिवन है, उसके बाद गिवन है सर्कल 100, 100, डैश, रेडियस वाली जगह पे डैश दिया है, लेकिन जो दूसरा सर्कल है वो भी हमारा सेम साइज का है, तो मीन्स उसकी रेडियस भी सेम है। नीचे वाले उसमें उसकी रेडियस 25 गिवन है। नेक्स्ट टू नेक्स्ट वाली लाइन में देखिए सर्कल 200 डैश 25, तो इसकी भी रेडियस 25 हो जाएगी, ऊपर आंसर आ जाएगा 25। उसके बाद कलर डैश, हमें इजीली विजिबल है आउटपुट में कि दूसरा सर्कल भी ब्लैक कलर का है, सो विल राइट कलर ब्लैक। नाउ इन नेक्स्ट लाइन वी हैव गिवन सर्कल, उसके बाद 200 गिवन है, फिर डैश गिवन है, y के कोऑर्डिनेट्स मीन्स हमारे पास गिवन नहीं है। सेंटर पॉइंट का हमारे पास x का गिवन है बट y गिवन नहीं है, और उसके बाद रेडियस गिवन है 25। तो मीन्स हमारा रो का कोऑर्डिनेट जो चेंज हुआ, पहले वाले सर्कल का 100 था, इसका 200 हो गया, लेकिन कॉलम हमारा सेम रहा, इसलिए y का कोऑर्डिनेट का आंसर हमारा 100 आएगा, सेम ऊपर वाले सर्कल की तरह। तो नेक्स्ट इज डैश रेड, रेक्टेंगल कौन से कलर का है, जो अंदर वाला है रेड कलर का है, सो कलर कमांड वहाँ गिवन नहीं है, वील राइट कलर। आफ्टर दैट वी आर गिवन रेक्ट 100, 175, डैश, 50 मीन्स हमें विथ चौड़ाई जो है वो गिवन नहीं है रेड वाले रेक्टेंगल की। तो हम देख सकते हैं जो हमारे ऊपर सर्कल्स हैं वो 100 कोऑर्डिनेट्स के हैं, इधर वाला भी 100 से उधर भी 100 से, तो टोटल हमारी स्पेस होती है 300, 100 इधर से 100 उधर से कैंसिल आउट हो गई, तो हमारी रेक्टेंगल की विड्थ कितनी रह गई 100, तो आंसर हो जाएगा 100। और लास्ट में हमने एंड कमांड देना है, सो वील गिव एंड कमांड टू टर्मिनेट द प्रोग्राम। ये हमारे आंसर्स हो गए। नाउ नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द फॉलोइंग कमांड्स यूजिंग देयर सिंटेक्स। हमें गिवन कमांड्स हैं कुछ 4 कमांड्स, उनको हमने एक्सप्लेन करना है और उनका सिंटेक्स बताना है। फर्स्ट इज सर्कल कमांड। सो सर्कल कमांड इज यूज टू ड्रॉ कलरफुल सर्कल्स ऑन ग्राफिक आउटपुट एरिया। कलरफुल सर्कल्स हम ड्रॉ कर सकते हैं सर्कल कमांड यूज करके ग्राफिक आउटपुट एरिया में। सिंटेक्स क्या होता है इसका, सर्कल ऑल इन कैपिटल, उसके बाद x, y, r। x हमारे रोज के कोऑर्डिनेट, y हमारे कॉलम्स के कोऑर्डिनेट और r हमारी रेडियस। x और y जो है वो हमारा सर्कल का एज अ सेंटर एक्ट करता है, x एंड y एक्ट एज अ सेंटर ऑफ द सर्कल। नाउ नेक्स्ट कमांड इज रेक्ट कमांड। यू कैन ड्रॉ द रेक्टेंगल इन द ग्राफिक आउटपुट एरिया बाय यूजिंग रेक्ट कमांड। रेक्ट कमांड का यूज करके हम ग्राफिक आउटपुट एरिया में रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं। सिंटेक्स है हमारा रेक्ट, RECT ऑल इन कैपिटल, x, y, विथ, हाइट। यहाँ पे x हमारे रोज के कोऑर्डिनेट, y हमारे कॉलम के कोऑर्डिनेट, विथ हमारी रेक्टेंगल की चौड़ाई विथ, और हाइट हमारी रेक्टेंगल की हाइट हो गई। नेक्स्ट कमांड इज लाइन कमांड। यू कैन ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन ऑन द स्क्रीन बाय यूजिंग लाइन कमांड। लाइन कमांड का यूज करके हम स्क्रीन पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। सिंटेक्स है लाइन, LINE ऑल इन कैपिटल, फिर ब्रैकेट में x1, y1, ब्रैकेट क्लोज, फिर कॉमा, फिर ब्रैकेट ओपन, x2, y2। यहाँ पे x1, y1 और x2, y2 क्या है, स्टार्टिंग और एंडिंग कोऑर्डिनेट्स हैं हमारी लाइन के। नाउ लास्ट इज पॉली कमांड।
वी कैन ड्रॉ द पॉलीगन शेप्स इन द ग्राफिक आउटपुट एरिया यूजिंग पॉली कमांड। पॉली कमांड का यूज़ करके हम पॉलीगन्स की डिफरेंट शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं ग्राफिक आउटपुट एरिया में। इसका सिंटेक्स है पॉली x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4। जितने हमारे पॉलीगन की साइड्स होंगी, पॉलीगन की साइड्स हमारी फिक्स नहीं होती, 3, 4, 5 कितनी भी हो सकती हैं। तो जितनी हमारी पॉलीगन्स की साइड्स होंगी उतनी उसकी स्टार्टिंग और एंडिंग कोऑर्डिनेट्स x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4 एंड सो ऑन उतने ही कोऑर्डिनेट्स होंगे। नाउ लास्ट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमारे पास क्वेश्चंस गिवन है, हमें उन्हें आंसर करना है। फर्स्ट वन इज व्हाट डू यू मीन बाय ग्राफिक्स इन बेसिक 256। हमारे चैप्टर का पहला क्वेश्चन कि क्या है ग्राफिक इन बेसिक 256। सो बेसिक 256 इज एन ईजी टू यूज वर्जन ऑफ बेसिक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का ही बेसिक 256 एक वर्जन है। इट इज़ यूज फॉर राइटिंग प्रोग्राम्स एंड वी कैन ड्रॉ डिफरेंट शेप्स एंड फिगर वेरी इजीली। इसके यूज से हम प्रोग्राम्स लिख सकते हैं और डिफरेंट शेप्स और फिगर्स इजीली ग्राफिक आउटपुट एरिया में हम बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द कंपोनेंट्स ऑफ बेसिक 256 विंडो। बेसिक 256 जो विंडो होती है उसके 5 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, हमें उनका नाम बताना है। फर्स्ट इज मेन्यू बार, सेकेंड इज टूल बार, थर्ड इज प्रोग्राम एरिया, फोर्थ इज टेक्स्ट आउटपुट एरिया एंड फिफ्थ इज ग्राफिक आउटपुट एरिया। ये हमारे 5 मेन कंपोनेंट्स हैं बेसिक 256 विंडो के। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज ग्राफिक आउटपुट एरिया, एक्सप्लेन। ग्राफिक आउटपुट एरिया जो हमारा एक कंपोनेंट है बेसिक 256 विंडो का, वो क्या होता है हमने एक्सप्लेन करना है। ग्राफिक आउटपुट एरिया अलाउज यूजर टू ड्रॉ डिफरेंट शेप्स एंड फिगर। ग्राफिक आउटपुट एरिया में हम डिफरेंट फिगर और शेप्स का आउटपुट ला सकते हैं, मीन्स डिफरेंट शेप्स और फिगर्स ड्रॉ कर सकते हैं। दिस एरिया इज मेड ऑफ मेनी टाइनी पार्ट्स कॉल्ड पिक्सल्स। ये छोटे छोटे पार्ट्स का बना होता है जिन्हें हम पिक्सल्स बोलते हैं। ये ग्राफिक आउटपुट एरिया होता है वो बिल्कुल ग्राफ पेपर की तरह लिखता है, रोज और कॉलम्स में डिवाइडेड होता है, बट ये रोज और कॉलम्स हमें विजिबल नहीं होते हैं। सो व्हाट इज द डिफॉल्ट साइज ऑफ ग्राफिक आउटपुट एरिया? इट इज 300x एंड 300y पिक्सल्स। 300 कोऑर्डिनेट हमारे रोज के और 300 कोऑर्डिनेट हमारे कॉलम्स के। हम इसको ग्राफिक आउटपुट एरिया के साइज को, डिफॉल्ट साइज को चेंज भी कर सकते हैं बाय यूजिंग ग्राफ साइज कमांड। फोर्थ क्वेश्चन इज इन हाउ मेनी वेज यू कैन अप्लाई कलर इन बेसिक 256। बेसिक 256 में हम कलर किन तरीके से अप्लाई कर सकते हैं? तो देयर आर 2 बेसिक वेज फॉर अप्लाइंग कलर। फर्स्ट वन इज बाय नेम। कलर नेम हम लिख के कलर अप्लाई कर सकते हैं, कलर कमांड दे के और कलर का नेम लिख के। और सेकेंड इज बाय RGB वैल्यू। RGB क्या होता है? रेड, ग्रीन, ब्लू वैल्यू। ये हमारे 3 प्राइमरी कलर्स हैं, इनकी वैल्यूज पुट करके हम डिफरेंट कलर्स अप्लाई कर सकते हैं। सो देयर आर 2 वेज फॉर अप्लाइंग कलर। फिफ्थ इज नेम ऑल द कमांड्स फॉर ग्राफिक आउटपुट एरिया। ग्राफिक आउटपुट एरिया के सारे कमांड्स हमने बताने हैं। पहला होता है हमारा CLG कमांड विच इज क्लियर स्क्रीन, जिससे हमारी स्क्रीन क्लियर हो जाती है। फिर है एंड कमांड। एंड कमांड से हमारा प्रोग्राम वहीं स्टॉप हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। टेक्स्ट कमांड। टेक्स्ट कमांड की हेल्प से हम टेक्स्ट दे सकते हैं ग्राफिक आउटपुट एरिया में। फ़ॉन्ट कमांड की हेल्प से हम टेक्स्ट का फ़ॉन्ट क्या होगा, उसका साइज क्या होगा और वेट क्या होगा वो डिसाइड कर सकते हैं। लाइन कमांड से वी कैन ड्रॉ लाइन्स इन ग्राफिक आउटपुट एरिया। सर्कल कमांड से वी कैन ड्रॉ कलरफुल सर्कल्स। रेक्ट कमांड, इसकी हेल्प से हम रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं। और पॉली कमांड्स की हेल्प से हम पॉलीगन ड्रॉ कर सकते हैं ग्राफिक आउटपुट एरिया में। सो दीज आर द कमांड्स ऑफ graphic output area. Next is which commands are used to display text in graphic output area? Write their syntax with example. तो बेसिकली 2 कमांड्स का यूज हम करते हैं, टेक्स्ट का और फॉन्ट का। टेक्स्ट कमांड से हम टेक्स्ट लिखते हैं और फॉन्ट कमांड से हम उसका फॉन्ट डिसाइड करते हैं कि टेक्स्ट का फॉन्ट क्या होगा और उसका साइज क्या होगा और क्या उसका वेट होगा। So to display the text as well as numbers in the graphic output area, we can use text and font command. The text command is used to display text message and its position in the graphic output area. text command से हम text message और उसकी position के बारे में बता सकते हैं graphic output area में। इसका syntax होता है text text x, y, expressions। एक एग्जाम्पल लेते हैं text 50, 75, PM पब्लिशर। यहाँ पे टेक्स्ट जो है वो हमारा कमांड है, 50 जो है वो x कोऑर्डिनेट है, 75 y कोऑर्डिनेट है और PM पब्लिशर हमारा मैसेज है जो हमने डिस्प्ले करना है। टेक्स्ट कमांड के साथ साथ वी कैन ऑल्सो यूज फॉन्ट कमांड। द फॉन्ट कमांड इज यूज टू स्पेसिफाई द फॉन्ट नेम, फॉन्ट साइज एंड वेट। टेक्स्ट का जो फॉन्ट नेम होगा, फॉन्ट साइज होगा और वेट होगा वो डिस्प्ले करने के लिए हमारा फॉन्ट कमांड यूज होता है। सिंटेक्स होता है फॉन्ट FONT इन कैपिटल, उसके बाद फॉन्ट नेम, फिर साइज इन पॉइंट, फिर वेट। एग्जाम्पल लेते हैं, फॉन्ट इंडिका, ये हमारा फॉन्ट नेम हुआ 24, 75। 24 हमारा फॉन्ट साइज हो गया और 75 हमारा फॉन्ट वेट हो गया। सो विद दिस वी कंप्लीट आवर चैप्टर 3 दैट वाज ग्राफिक इन बेसिक
256. Write down all the question and answers, and that question explain the following commands in your notebook, and exercise you can complete in book. Thank you and have a nice day. From next lecture we'll start the new chapter.